Good morning, friends. Welcome to my 27th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding mode. I have told that mode is the variable having highest frequency in a series. Mode is the variable which is repeated most number of times in a series, or mode is the most preferred value, most watched value, most liked value of a particular series. So there are three important methods for calculation of mode. First method is inspection method or observation method. Second method is grouping method. Third method is empirical relationship method. So first method, inspection method. Here mode can be found out easily by locating, by inspecting, by observing the series, and there is no dispute regarding the mode. That means the value is most liked in that series, that value occurred most number of time in that series, then we find out mode by inspection method. But if there is any doubt regarding the most preferred, most liked value, or if there is a gap between highest number of frequency and the next highest is very low, the gap is very low, in that case we go for grouping series or grouping method. Once we go for grouping method, we make 6 round of fights, and in that 6 round of fights, suppose after 6 round of fight 2 values or 3 values having same score, then what will happen? Then mode cannot be found out by grouping method also. In that case, we have to go for empirical relationship method. So empirical relationship method is the method for last resort. First, we have to adopt inspection method. If we fail, then we will go for grouping method. If we fail, then we will go for empirical relationship method. This is the last method which is to be used when there is no other option for finding out mode. Okay, so today we will discuss regarding empirical relationship method of finding out mode. Before discussing details regarding empirical relationship of finding out mode, let me first share my slide with you, then we will discuss empirical relationship method of finding out mode. Once again, ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट हम बात करेंगे आज एम्पिरिकल रिलेशनशिप मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट मोड. फर्स्ट हम लिखेंगे व्हेन टू यूज दिस मेथड. ये मेथड कब यूज करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टू यूज दिस मेथड. ये मेथड कब यूज करेंगे? मैं पहले बता चुका हूं, जब बाकी का 2 मेथड फेल हो जाए मोड निकालने में, उसी टाइम में हम ये मेथड को फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, व्हेन टू यूज दिस मेथड लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, दिस मेथड इज टू बी यूज्ड, दिस मेथड इज टू बी यूज्ड this method is to be used when mode is, please mind this word, ill defined. अंडरलाइन कीजिए ये वर्ड को, क्या है? जब मोड इल डिफाइंड है. व्हाट इज इल डिफाइंड? मोड इज नॉट डिफाइंड प्रॉपर्ली. तो लिखेंगे ब्रैकेट करके इल डिफाइंड कर लो, मतलब इट इज नॉट डिफाइंड प्रॉपर्ली. अगर मोड इल डिफाइंड हो जाता है तो ये मेथड को हम अडॉप्ट करेंगे. ये इल डिफाइंड कब होता है? जब हम ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करते हैं और ग्रुपिंग मेथड में 2-3 वैल्यू का स्कोर सेम हो जाता है.
तो लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल suppose variables are like this. Variables are 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, like this. And grouping table, analysis table, score. हम ग्रुपिंग एनालिसिस टेबल बताए थे, ग्रुपिंग एंड एनालिसिस स्कोर। ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल का जब स्कोर बनाए तो स्कोर क्या आया, ये 10 का आया सपोज 1, 20 का आया 1, लेकिन 30 का आया 3, 40 का आया 3, 50 का आया 3, और इसका 1, इसका 1। अभी ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल करने के बाद भी ये तीनों सेम स्कोर आ गया। अगर सेम स्कोर आ गया इसको बोलते हैं ट्राई मोडल सीरीज। अगर 2 का सेम स्कोर आएगा इसको बोलेंगे बाई मोडल सीरीज। तो ग्रुपिंग एनालिसिस करने के बाद भी यू गेट, तो लिखेंगे थर्ड, इट मीन्स आफ्टर preparing grouping and analysis table, you get, क्या मिलता है, आइदर बाई मॉडल, बाई मॉडल मतलब दोनों का स्कोर इक्वल हो जाए, बाई मॉडल, कोमा ट्राई मॉडल, ट्राई मॉडल मतलब तीनों का इक्वल हो जाए, या 4-5 का इक्वल हो जाए तो मल्टी मॉडल वैल्यूज। तो उस टाइम में आपको मोड निकालना ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल में भी पॉसिबल नहीं है। अगर उस तरह का सिचुएशन आए जहां ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल बनाने के बाद भी मोड हम नहीं निकाल सकते हैं, उसी केस में हमको मजबूरी में भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। भगवान के शरण में मतलब भगवान कौन है, एम्पिरिकल रिलेशनशिप मेथड। ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप मेथड यहीं पर जाना पड़ेगा। लेकिन पहले डायरेक्टली तो हम भगवान के पास नहीं जाते हैं, अपना कोशिश करते हैं। पहले इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे, फिर वो काम नहीं दिया तो कौन सा ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। ये दोनों अगर काम नहीं दिया, फेल हो गया, तो फिर भगवान भरोसा। भगवान भरोसा मतलब एम्पिरिकल रिलेशनशिप मेथड। तो एम्पिरिकल रिलेशनशिप मेथड इज द लास्ट वेपन, इट मस्ट नॉट बी यूज्ड फास्ट। ये लास्ट वेपन है। ये कब जब लगेगा, जब लास्ट में सिचुएशन बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, मल्टी मॉडल जैसा हो जाता है, तब हमको मजबूरी में जाकर कौन सा मेथड लगाना पड़ता है, ये मोड वाला मेथड लगाना पड़ेगा, एम्पिरिकल रिलेशनशिप मेथड। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे। लिखिए, सेकेंड लिखिए, एम्पिरिकल रिलेशनशिप मेथड। एम्पिरिकल रिलेशनशिप मेथड, लिखिए एम्पिरिकल रिलेशनशिप मेथड। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, दिस मेथड इज गिवन बाय, on number 1, this method is given by famous statistician जिनका नाम है कार्ल पियर्सन।
तो ये मेथड को कौन दिए थे? कार्ल पियर्सन दिए थे। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, कौन सा मेथड? एम्पेरिकल रिलेशनशिप मेथड। तो कार्ल पियर्सन बोलते हैं जितना सीरीज ऑफ डाटा है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सीरीज ऑफ डाटा मतलब जितना डाटा दिया हुआ है, एक जितने टाइप का सीरीज हो सकता है, एक्स और एफ को लेकर जितने टाइप का सीरीज हो सकता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं सिमेट्रिक सीरीज। तो एक पार्ट होता है सिमेट्रिक सीरीज और दूसरा पार्ट होता है एसिमेट्रिक सीरीज। एसिमेट्रिक सीरीज को भी हम बोलते हैं स्क्यूड सीरीज। तो दो तरह का सीरीज होता है। कौन कौन सा दो तरह का सीरीज है? पहला सीरीज है सिमेट्रिक सीरीज और दूसरा सीरीज है एसिमेट्रिक सीरीज। तो दो तरह का सीरीज है, सिमेट्रिक सीरीज और एसिमेट्रिक सीरीज। तो बात करेंगे व्हाट इज ए सिमेट्रिक सीरीज, फिर बात करेंगे व्हाट इज ए एसिमेट्रिक सीरीज। सिमेट्रिक सीरीज क्या है, एसिमेट्रिक सीरीज क्या है? तो सिमेट्रिक सीरीज क्या है? सिमेट्रिक सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसका अगर हम एक्स और एफ, एक्स और एफ मतलब एक्स मीन्स वेरिएबल, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी को ग्राफ में डालें तो इस तरह का ग्राफ आएगा। तो ये एक्स वैल्यूज, अगर सिमेट्रिक सीरीज का इस साइड में एक्स लिया, कौन सा साइड में एक्स लिया? ये वाला साइज एक्स या वेरिएबल, और इस साइड में फ्रीक्वेंसी लिया, एफ लिया, और इसका ग्राफ बनाया, उसका ग्राफ एक बेल शेप्ड कर्व का होगा। व्हाट इज ए बेल शेप्ड कर्व? मंदिर में जैसे घंटा होता है ना, वो घंटे की तरह अगर कर्व हुआ उसको बोलते हैं सिमेट्रिक सीरीज। तो व्हाट इज ए सिमेट्रिक सीरीज? ये बोलते हैं अगर सिमेट्रिक सीरीज का हम ग्राफ बनाएंगे, उसका ग्राफ एक बेल जैसा कर्व का होगा। मंदिर में जैसे घंटा है उस तरह का होगा। एक्स एक्सिस में वेरिएबल लेंगे, वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पर वेरिएबल लिया, यहां पर फ्रीक्वेंसी लिया। अगर इस तरह का घंटा जैसा मिलता है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक सीरीज। और कार्ल पियर्सन बोलते हैं ये सिमेट्रिक सीरीज में आपका मीन जो है, मीडियन वही है और मोड वही है। इसका मतलब सिमेट्रिक सीरीज में मीन, मीडियन और मोड सेम है। मीन इजिकल टू मीडियन इजिकल टू मोड। बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो कार्ल पियर्सन क्या बोले, दुनिया में दो तरह का सीरीज है। कौन कौन सा सीरीज है? एक है सिमेट्रिक सीरीज, एक है एसिमेट्रिक सीरीज या स्क्यूड सीरीज। तो सिमेट्रिक सीरीज का अगर ग्राफ बनाते हैं वो बेल शेप्ड का होता है, और बेल शेप्ड का होता है, और उसका मीन, मीडियन, मोड क्या होता है? इक्वल होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? सिमेट्रिक सीरीज क्या है, उसका मीन, मीडियन, मोड क्या है? इक्वल है। ये पॉइंट याद रहेगा, मीन इजिकल टू मीडियन इजिकल टू मोड इन केस ऑफ व्हिच सीरीज? सिमेट्रिक सीरीज। सिमेट्रिक सीरीज में मीन, मीडियन, मोड इक्वल होता है। अभी समझेंगे कौन सा सीरीज? एसिमेट्रिक सीरीज। व्हाट इज एसिमेट्रिक सीरीज? एसिमेट्रिक सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसका अगर ग्राफ हम बनाएंगे उसका ग्राफ बेल शेप्ड का नहीं होगा, उसका ग्राफ कुछ अलग तरह का होगा। समझ में आ गया? ये बोलते हैं उसका ग्राफ इस तरह का हो सकता है। कौन से तरह का?
तो ये बोलते हैं उसका ग्राफ किस तरह का होगा, ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई। अच्छा, इसका ग्राफ आइदर राइट साइड में ज्यादा होगा या लेफ्ट, नहीं तो लेफ्ट साइड में ज्यादा होगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से देखिए, एक ऐसा ग्राफ भी बन सकता है जहां पर लेफ्ट साइड कम है और देखिए राइट साइड में बहुत सारा डाटा है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये बेल शेप्ड नहीं है, लेफ्ट साइड में कम है और राइट साइड में बहुत सारा डाटा है। समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं, इसको थोड़ा अच्छी तरह से बनाता हूं। देखिए मैं बताया क्या क्या होगा, लेफ्ट साइड में कम डाटा होगा, राइट साइड में ज्यादा डाटा होगा। लेफ्ट साइड में कम डाटा है लेकिन राइट साइड में बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? लेफ्ट साइड में जस्ट इतना डाटा है लेकिन राइट साइड में बहुत ज्यादा है। अगर इस तरह का ग्राफ आया, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली स्क्यूड। क्लियर? तो फास्ट बोला सिमेट्रिक में बेल शेप का होता है, नहीं तो स्क्यूड लेफ्ट साइड में ज्यादा या राइट साइड में ज्यादा। ये क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में देखिए कितना है, थोड़ा डाटा है, इतना डाटा है, लेकिन राइट साइड में बहुत डाटा है, राइट साइड में इतना बड़ा डाटा है। तो इस तरह का राइट साइड में अगर ज्यादा होगा, इसको बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यू। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये कार्ल पियर्सन बोले पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड विल बी, मीन विल बी ग्रेटर देन मीडियन, विल बी ग्रेटर देन मोड। इसका मतलब क्या है, क्या रिलेशन है यहाँ पर? मीन ज्यादा होगा किससे? मीडियन से, और मीडियन ज्यादा होगा किससे? मोड से। सिमेट्रिक में क्या है, तीनों सेम है, मीन इजिकल टू मीडियन इजिकल टू मोड। लेकिन एसिमेट्रिक में और स्क्यूड में अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन ज्यादा होगा मीडियन से और मीडियन ज्यादा होगा मोड से। बेटा समझ में आ रहा है क्या? पॉजिटिवली स्क्यूड क्या है? पॉजिटिवली स्क्यूड में लेफ्ट साइड में कम है, राइट साइड में ज्यादा है। अच्छा, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा होगा, राइट साइड में कम होगा। तो देखेंगे लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा है, लेकिन राइट साइड में बहुत कम है। अगर इस तरह का डाटा है तो इसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यू। क्या बोलते हैं? नेगेटिवली स्क्यू। क्यों इसको नेगेटिवली स्क्यूड है? क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा फिगर है लेकिन राइट साइड में बहुत कम फिगर है, तो नेगेटिवली स्क्यूड। तो कार्ल पियर्सन कहते हैं अगर एक सीरीज में नेगेटिवली स्क्यूड है, मीन, मीडियन और मोड का रिलेशन पॉजिटिव का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। पॉजिटिव का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? हो जाएगा मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड। बेटा ये समझ में आ गया? तो कार्ल पियर्सन का बात को हम समरी करते हैं। कार्ल पियर्सन क्या बोले हैं पॉजिटिवली स्क्यूनेस के बारे में? बोले हैं दुनिया में दो तरह का सीरीज है, एक बोलते हैं सिमेट्रिक सीरीज, एक बोलते हैं स्क्यूड या असिमेट्रिक सीरीज। सिमेट्रिक सीरीज में मीड, मीडियन, मोड इक्वल है। स्क्यूड दो तरह का हो सकता है, आइदर पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकता है या नहीं तो नेगेटिवली स्क्यूड हो सकता है। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड हुआ, राइट साइड में ज्यादा फिगर होगा, लेफ्ट साइड में कम फिगर होगा। वहां पर मीन ज्यादा होगा मीडियन से, मीडियन ज्यादा होगा मोड से।
और नेगेटिवली स्क्यूड है वहां पर क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट है। कौन से साइड में ज्यादा फिगर होंगे, ज्यादा फिगर होंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कम फिगर हो गए, उसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। अगर नेगेटिवली स्क्यूड है, मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशन रहेगा, मीन कम होगा मीडियन से, मीडियन कम होगा मोड से। So this is the relationship given by Carl Pearson in case of skewed and symmetric distribution. यही रिलेशन को लेकर कार्ल पियर्सन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में एक रिलेशन डेवलप किए मीन, मीडियन और मोड के बीच में, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल रिलेशन। क्योंकि सिमेट्रिक में कुछ नहीं है, मीन इजिकल टू मीडियन इजिकल टू मोड, लेकिन असिमेट्रिक में या स्क्यूड में देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। वो रिलेशनशिप को बोलते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप। तो लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो लिखिए थर्ड पॉइंट, लिखिए इन केस ऑफ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड पॉइंट, लिखिए इन केस ऑफ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, इन केस ऑफ skewed distribution, he had suggested, he मतलब कार्ल पियर्सन, he had suggested a relationship between mean, median and mode, which is known as empirical relationship, जिसको हम बोलते हैं क्या, एम्पेरिकल रिलेशनशिप, जिसको हम एम्पेरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो क्या रिलेशनशिप दिए, वो एक फॉर्मूला दिए। अगर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन, मीडियन, मोड में एक रिलेशनशिप है, कौन सा रिलेशनशिप है, वो उनका फॉर्मूला है मोड इजिकल टू, लिखेंगे मोड इजिकल टू 3 मीडियन -2 मीन। लिखिए क्या फॉर्मूला क्या है, मोड इजिकल टू, फॉर्मूला है मोड इजिकल टू 3 मीडियन -2 मीन। यही एम्पिरिकल रिलेशनशिप का फॉर्मूला है, मोड इजिकल टू 3 मीडियन -2 मीन। मोड कैसे निकलेगा, 3 मीडियन, मीडियन को 3 में मल्टीप्लाई करो और मीन को 2 में मल्टीप्लाई करो और दोनों का माइनस कर दो, एम्पिरिकल रिलेशनशिप में मोड निकल जाएगा। तो मोड इजिकल टू 3 मीडियन -2 मीन, दिस इज हिज रिलेशनशिप। अभी इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ रहा है क्या, दो एग्जाम्पल करेंगे। पहला एग्जाम्पल 1 सिंपल वाला, फिर थोड़ा डिफिकल्ट वाला करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल 1, लिखिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 लिखिए in a moderately skewed distribution, in a moderately skewed distribution, मतलब एक skewed distribution में, ठीक है, the value of mean is 26, मीन का वैल्यू कितना है 26, फुल स्टॉप। एंड मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है इजिकल टू, मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 24। फाइंड द
वैल्यू ऑफ मोड, मतलब किसका वैल्यू दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है, तुमको क्लियर कर दिया है, ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में एम्पिरिकल रिलेशनशिप लगेगा। मीन का वैल्यू कितना है, मीन है 26, मीडियन है कितना 24, मोड का वैल्यू निकालो। समझ में आ गया? मोड का एक मजबूरी का वैल्यू निकालना पड़ता है, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप का मेथड। तो मोड का फॉर्मूला डालेंगे और वैल्यू निकालेंगे। मोड इजिकल टू, फॉर्मूला क्या है मोड का, तो देखेंगे मोड इजिकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन कितना है, मीडियन का वैल्यू कितना है, मीडियन वैल्यू सर 26 है, माइनस 2 मीन, माइनस 2 इंटू मीन का वैल्यू कितना है, मीन का वैल्यू 26 है, तो कितना आया 3 इंटू 26 72, माइनस 2 इंटू 26 52, वैल्यू कितना आ रहा है, वैल्यू आ रहा है 72 माइनस 52 दैट इज इक्वल टू 20। इसका मतलब हमको मोड का वैल्यू मिल गया, मोड वैल्यू कितना है 20। दिस इज आवर आंसर। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ था 26, मोड दिया, मीडियन दिया हुआ था 26, मोड निकालने को बोला था। मोड कैसे निकलेगा, एम्पिरिकल रिलेशनशिप लेंगे, 3 मोड इजिकल टू, ये फॉर्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, फॉर्मूला 3 मीडियन निकाल दिए, माइनस 2 मीन निकाल दिए, वैल्यू आ गया 20। एग्जाम्पल नंबर 1 ओवर। ओके, अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 में मीन मीडियन दे दिया था, एग्जाम्पल नंबर 2 अभी जो करेंगे इसमें मीन नहीं दिया हुआ है, मीडियन नहीं दिया हुआ है, हमको क्या करना है, मीन का वैल्यू निकालना है, मीडियन का वैल्यू निकालना है और मोड का वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग। जो डाटा दिया हुआ है उससे क्या निकालिए, मोड निकालिए। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है पहले देखेंगे। फर्स्ट एक्स वैल्यू इज गिवन, एफ वैल्यू इज गिवन, तो लिखेंगे एक्स, फिर लिखेंगे एफ। अच्छा, एक्स क्या है, एक्स दिया हुआ है 0 to 10, नेक्स्ट लिखेंगे 10 to 20, नेक्स्ट लिखेंगे 20 to 30, नेक्स्ट लिखेंगे 30 to 40, नेक्स्ट लिखेंगे 40 to 50, नेक्स्ट लिखेंगे 50 to 60। एक्स वैल्यू दे दिया, अभी एफ का वैल्यू दे देगा। एफ वैल्यू इज गिवन, 0 to 10 का दिया हुआ है 5, 10 to 20 का दिया हुआ है 10, 20 to 30 का दिया हुआ है 10, 30 to 40 का दिया हुआ है 10 और 40 to 50 का दिया हुआ है 5, 50 to 60 का दिया हुआ है 10। अभी इसका मोड बोलता है, तो एन भी दे दिया है, एन कितना दिया हुआ है सबको ऐड कर दो, तो कितना हो रहा है 5 10 15 10 25 35 45 10 50। अभी इसका मोड, अभी इसमें देखिए कितना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, 4 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये भी हाईएस्ट है, ये भी हाईएस्ट है, ये भी हाईएस्ट है, ये भी हाईएस्ट है।
तो यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, यहाँ पर जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप मेथड लगेगा, क्योंकि ये मल्टी मोडल सीरीज है। कौन सा सीरीज है, मल्टी मोडल सीरीज, इट्स ए मल्टी मोडल सीरीज। तो इट्स ए मल्टी मोडल सीरीज, इट इज ए multimodal series. We have to apply which method, empirical relationship method. हमको एम्पेरिकल रिलेशनशिप मेथड लगाना है। क्यों लगाना है, ये एक मल्टी मोडल सीरीज है जहां पर एक से ज्यादा मोड है, 4 मोड है। तो मल्टी मोडल में यहाँ पर एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्या बोलता है, मोड इज इक्वल टू मीडियन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है। तो मोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू, हमको पता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका मतलब ये सीरीज में पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर मीन निकालना पड़ेगा, फिर ये फॉर्मूला डालकर मोड निकालेंगे। तो देखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं, पहले मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले CF निकालना पड़ेगा। तो निकालिए CF। तो CF फर्स्ट वाला कितना होगा 5, सेकंड वाला 5 प्लस 10 15 हो जाएगा, थर्ड वाला 15 10 25 हो जाएगा, फोर्थ वाला 35 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 35 प्लस 5 40 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 40 प्लस 10 50 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मीडियन क्लास निकालते हैं, फिर मीडियन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अभी कैलकुलेशन, ठीक है। पहले निकालते हैं मीडियन क्लास, तो लिखेंगे मीडियन क्लास। व्हाट इज मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कितना आएगा, मीडियन क्लास इज इक्वल टू सर n/2th आइटम। तो देयरफॉर मीडियन क्लास कितना होगा, n/2, n कितना है, n है सर 50/2, दैट इज इक्वल टू 25th आइटम। 25 नंबर वाला आइटम कहाँ है, ढूंढेंगे, कहां पर ढूंढेंगे, CF में। 5 में 25 है क्या, नहीं। 15 में 25 है क्या, नहीं। सर 25 में 25 है, तो दिस इज आवर मीडियन क्लास। व्हिच इज आवर मीडियन क्लास, 20 to 30। तो लिखेंगे देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू कितना आया, 20 to 30। एक बार मीडियन क्लास मिल गया, फिर मीडियन निकल जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला डालेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, देखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू I। अच्छा, L कितना है, L मीन्स लोअर लिमिट, 20 और 30 का लोअर लिमिट कितना है 20, प्लस n/2 तो यहां पर निकाले हैं, कितना आ रहा है n/2 25, माइनस CF कितना है, जो मीडियन क्लास है उसका ऊपर वाला क्लास का CF, उसका ऊपर वाला क्लास कितना आता है 15, तो -15 बाई F है उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी है 10 बाई 10 इंटू आई क्या है, क्लास इंटरवल बिटवीन मीडियन क्लास, 20 से 30 के बीच का इंटरवल, 20 से 30 के बीच का इंटरवल कितना है, 20 से 30 के इंटरवल है 10। तो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 20 प्लस ये ऊपर हो गया 10 बाई 10 इंटू 10, बेटा आ गया 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 30। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू कितना आया 30। हमारा कैलकुलेशन हो गया मीडियन का वैल्यू हमको मिल गया 30। ओवर एक झमेला चल आ गया, मीडियन मिल गया 30, तो मीडियन मिल गया। अभी और क्या चाहिए, अभी मीन निकालना चाहिए, तो मीन निकालते हैं। तो मीन कैसे निकालेंगे, ये है कौन सा सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज,
पहले मिड वैल्यूज निकालते हैं, फिर मीन निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे मिड वैल्यूज एम कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। फर्स्ट का 0 प्लस 10 बाई 2 5, नेक्स्ट 10 प्लस 20 बाई 2 15, 20 प्लस 30 बाई 2 25, नेक्स्ट 30 प्लस 40 बाई 2 35, नेक्स्ट होगा 40 प्लस 50 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 45, नेक्स्ट होगा 50 प्लस 60 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 55। आ गया मिड वैल्यूज। अभी इसमें से एक एज्यूम मीन ले लीजिए, एज्यूम मीन ए इज इक्वल टू सपोज 25, तो क्या निकाल लेंगे फिर डी, डी इज इक्वल टू एम माइनस ए, तो एम माइनस ए निकाल लीजिए। 5 माइनस 25 कितना हो गया -20, देन 15 माइनस 25 -10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, नेक्स्ट 45 माइनस 25 20, नेक्स्ट 55 माइनस 25 35, माइनस 25 30। अभी ये डी भी डिविजिबल किसमें है, डिविजिबल है 10 में, तो कॉमन ले लेते हैं 10, फिर डी डैश निकाल देते हैं, डी डैश इज इक्वल टू डी बाई 10, तो कितना होता है डी डैश -2 -1 0 1 2 3। फिर क्या चाहिए, एफ को डी डैश में मल्टीप्लाई करेंगे, निकाल दीजिए एफ डी डैश। एफ डी डैश कितना आता है, फर्स्ट में एफ है 5, डी डैश है -2 हो गया -10, सेकेंड में एफ है 10, यहाँ पर है -1 -10, थर्ड में ये 10, यहाँ पर 0 0 0 इंटू समथिंग, फिर फोर्थ में 10 है, इसमें है 1, तो 10 इंटू 1 10, नेक्स्ट सेकेंड में 5 है, इसमें 2 है, 5 इंटू 2 10, नेक्स्ट लास्ट में 10 है 3 है, 10 इंटू 3 30। तो मेरा आ गया अभी समेशन एफ डी डैश कितना आया, समेशन एफ डी डैश -10 ये +10 10 कट गया तो बचा है 30, तो 30 आ गया। तो अभी इतना सब निकाल दिया। क्यों इतना सब काम किया हूं, मैं इतना सब काम किया हूं मीन निकालने के लिए। तो अभी मीन निकालूंगा, तो देखते हैं मीन कैसे आएगा, देखते हैं। बेटा मीन निकालते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, यहां पर करता हूं मीन का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो मीन देखेंगे, मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है मीन का क्या, ए प्लस समेशन एफ डी डैश बाई एन इंटू आई, हम पढ़े हैं फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज ए मीन्स एज्यूम मीन, एज्यूम मीन कितना है देखते हैं हम, एज्यूम मीन कितना लिए हैं, एज्यूम मीन कितना लिए हैं, देखो थोड़ा ऊपर इसको उठाता हूं, देखिए एज्यूम मीन सर 25 लिए हैं, तो ये हो गया 25, एज्यूम मीन 25 है, तो 25 प्लस समेशन एफ डी डैश, समेशन एफ डी डैश यहाँ पर है 30 बाई एन, एन कहां पर है, एन है 50 इंटू आई, आई भी दिया हुआ है, आई कहां पर है गैप, आई यहां पर दिया हुआ है 10 इंटू 10, तो क्या होता है देखते हैं, ये कट गया, 10 को काट दो, इसमें 5, 5 को काटो, ये हो गया 6, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 31। तो हमारा मिल गया मीन, मीन कितना आया, मीन इज इक्वल टू 31। बेटा मीडियन आ गया था कितना, मीडियन आ गया था आपका 30, मीन आ गया कितना 31। अभी हम क्या करेंगे, अपना वैल्यू लगा देंगे, एम्पिरिकल रिलेशनशिप, और निकाल लेंगे मोड का वैल्यू। तो देखेंगे मोड का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखेंगे बाई एम्पिरिकल रिलेशनशिप, लिखेंगे बाई एम्पिरिकल रिलेशनशिप मोड इजिकल टू, फॉर्मूला क्या है, मोड इजिकल टू 3 मीडियन -2 मीन।
और मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है कितना 30 माइनस 2 मीन, 2 मीन का वैल्यू यहां पर निकला है कितना 31, कितना आता है 3 इंटू 30 90, 2 इंटू 31, 2 इंटू 31 कितना होता है 2 इंटू 31 निकालेंगे 62, 90 में से 62 गया कितना आया 28, तो अभी मोड का वैल्यू निकल गया। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू कितना आया 28, मोड का वैल्यू आ गया 28। दिस इज आवर आंसर। तो मोड का वैल्यू कितना आ गया 28, मीडियन का वैल्यू 30 आया, मीन का वैल्यू 31 आया, मोड का वैल्यू डाले, ये फॉर्मूला डाले 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इसका इंपेरिकल रिलेशनशिप डालकर मोड का वैल्यू आया, मोड का वैल्यू आया 28। समझ में आ रहा है क्या? यहां तक समझ में आ गया। सो दिस इज रिगार्डिंग एम्पेरिकल रिलेशनशिप ऑफ मोड। ओके, अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मोड, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ मोड, एंड आज के क्लास को मोड का कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, हेडिंग कीजिए। हेडिंग कीजिए मेरिट्स ऑफ मोड या एडवांटेजेस ऑफ मोड। मोड का क्या क्या एडवांटेजेस है, फिर लिखेंगे मोड का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। पहले एडवांटेजेस लिख लीजिए, तो पहले लिखिए मेरिट्स ऑब्लिक एडवांटेजेस ऑफ मोड। मोड एवरेज का क्या क्या एडवांटेजेस या मेरिट्स है, तीन चार एडवांटेजेस पढ़ेंगे, तीन चार डिमेरिट्स पढ़ेंगे। पहला एडवांटेजेस या मेरिट्स, क्या मेरिट्स है, पहला मेरिट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट, मोड इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। मोड इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, क्योंकि मोड एक ऐसा एवरेज है जिसमें कोई आइटम कितना बड़ा हो उससे एवरेज नहीं निकलता है। जो आइटम सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही मोड हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं, देखिए सपोज एक आइटम है 1 1 1 1 200, मीन निकालोगे तो 200 प्लस ये बाई 5 हो जाएगा, लेकिन मोड यहां पर सिर्फ एक ही है, मोड इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रहा है क्या? तो मोड का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, मोड इज इक्वल टू 1 यहां पर पता चल जाएगा, मोड इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो यहां पर इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू 200 है लेकिन मोड 200 नहीं हुआ, मोड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोड का वैल्यू 1 हो जाएगा। दिस इज मोड। फर्स्ट की पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे it is easy to understand. Mode is easy to understand. It is easy to understand. ये एवरेज समझना बहुत इजी है, कोई डाउट नहीं है। थर्ड, मेनी टाइम्स इट कैन बी फाउंड बाय इंस्पेक्शन। बहुत बार ये सिर्फ इंस्पेक्शन से पता चल जाएगा। जैसे अभी मैं देख कर बोल दिया हूं मोड इतना है, समझ में आ गया। इट कैन बी फाउंड बाय इंस्पेक्शन, तो 3 पॉइंट चला गया। एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है, इजी टू अंडरस्टैंड है। थर्ड है कैन बी इजीली फाउंड बाय इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन से मोड का वैल्यू पता हो जाता है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड to describe quantitative
as well as qualitative phenomenon. बेटा क्वांटिटेटिव तो समझ में आ गया, जो नंबर में एक्सप्रेस हो सकता है, लाइक मार्क, हाइट, ये सब क्वांटिटेटिव चीज है। क्वालिटेटिव चीज क्या है, जैसे मैं बताया था ब्यूटी, ऑनेस्टी, लव, ये सब क्वालिटेटिव फिनोमिनन। ये क्वालिटेटिव फिनोमिनन में भी मोड यूज हो सकता है। मैं बताया क्वालिटेटिव डाटा के लिए दो एवरेज बहुत पॉपुलर है, एक है मीडियन मोड। क्वालिटेटिव का मीन कभी नहीं निकल सकता है। मैं बताया था ब्यूटी ऑफ ऐश्वर्या राय प्लस ब्यूटी ऑफ सुष्मिता सेन डिवाइड बाई 2 नहीं निकल सकता है। लेकिन ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन से कौन ज्यादा ब्यूटीफुल है, लोग किसको ज्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, तो ये निकल सकता है। दैट इज मोड। समझ में आ रहा है क्या? मोस्ट पॉपुलर कौन है इन दोनों में से, मोड। समझ में आ रहा है क्या? तो मोड समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट 5 नंबर, 5 नंबर पॉइंट लिखिए। It is widely used in industry. इंडस्ट्री में ये बहुत यूज होता है। किसके लिए? प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए। जो चीज का डिमांड ज्यादा रहेगा वही चीज को हम ज्यादा बनाएंगे। कस्टमर प्रिफरेंस के लिए, कस्टमर कौन सा चीज को ज्यादा लाइक करता है उसको ढूंढने के लिए हम मोड यूज करते हैं। तो इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री। तो मोड का 5 इंपोर्टेंस मेरिट समझ में आ गया। पहला, एक्सट्रीम वैल्यू इसको अफेक्ट नहीं करता है। दूसरा, ये इजी है। तीसरा, ये इंस्पेक्शन से पता चल जाएगा। चौथा, ये क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा दोनों के लिए यूजफुल है। पांचवा, ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो दीज आर दी मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ मोड। अभी हम बात करेंगे व्हाट आर द डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड। हेडिंग करो, डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड। हेडिंग करो, डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड। डिमेरिट्स ऑब्लिक डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड। मोड का क्या क्या डिमेरिट्स है या डिसएडवांटेजेस है उसको अभी लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। सारा ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये बेस नहीं है। ये सिर्फ उसी ऑब्जर्वेशन को करता है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। मोड एक ऐसा एवरेज है जो सबको नहीं लेता है, लेकिन मीन सबको लेता है। मोड लेकिन सबको नहीं लेता। सेकेंड, इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट मोड। इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट मोड in case of bimodal, trimodal, multimodal सीरीज। कोई बाईमोडल सीरीज रहेगा, कोई ट्राईमोडल सीरीज रहेगा, कोई मल्टीमोडल सीरीज रहेगा, वहां पर मोड निकालना डिफिकल्ट है। नॉर्मल सीरीज में मोड तो इंस्पेक्शन से निकल जाएगा, लेकिन बाई मॉडल, ट्राई मॉडल और मल्टी मॉडल रहेगा, ग्रुपिंग लगाएंगे, ग्रुपिंग काम नहीं देगा तो एम्पिरिकल लगाएंगे, तो जाकर मोड निकल सकता है। नेक्स्ट 3 नंबर, इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, मतलब मोड का एक फॉर्मूला नहीं है। समझ में आएगा? जैसे मीन का एक फॉर्मूला है, लेकिन मोड का कितना फॉर्मूला है? 3 फॉर्मूला है। इंस्पेक्शन में लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे? ग्रुपिंग लगाएंगे, नहीं तो एम्पिरिकल लगाएंगे, और तीनों फॉर्मूला में आंसर डिफरेंट होगा।
सो दिस इज द लिमिटेशन। आंसर तीनों फॉर्मूला में डिफरेंट होगा। तो मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, मोड का कोई सर्टन एक ही फॉर्मूला नहीं। नेक्स्ट, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर algebraic ट्रीटमेंट। फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट मतलब दो ग्रुप का मोड दिया हुआ है, हम कॉम्बाइंड मोड नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब मोड से और ज्यादा अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। दिस इज द डिमेरिट्स ऑफ मोड। तो क्या क्या डिमेरिट्स पढ़े? पहले, सारा ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये बेस नहीं है। सेकेंड, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, मल्टी मॉडल सीरीज में इसका कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। थर्ड क्या पढ़े? थर्ड पढ़े अगर ये रिजिडली डिफाइंड नहीं है। थर्ड, फोर्थ पढ़े क्या? फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट मोड में नहीं हो सकता है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ मोड। So with this, we can have to complete the session. But before concluding the session, let me first tell you, if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe to my channel. My YouTube channel is Commerce Forum. Commerce Forum. Once you subscribe my channel, kindly press which icon? Bell icon. Okay. And if you have any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is biswamisra@gmail.com. Okay, so thank you for watching my videos. If you have any doubt, you are always free to contact me. Thank you again for watching my videos. Have a nice day. Thank you all.